each and everyone, all the fresh fraternities. Myself, I am Mr. Yurum Tamin, President of Arunachal Law Students Union. And on my right is Mr. Biri Chatum, the President of NESA, that is Nisi Ethnic Students of Arunachal. And on my left is Mr. Nabam Tato, the President of All Papumpare District Students Union. And that is Mr. Raju Maling, the President of All Tagin Students Union. And as everyone knows, because the net has been shut down for a few days, therefore all your press media has also been shut down. And today's press conference, it is regarding the proposed, the 48 hours band call that we had proposed from 21st of February from 5 a.m. to 23rd of February 5 a.m. And firstly, I feel very much unhappy for the incidents that has occurred in last few days, especially during the band call period and after that also. And in regard to that, with the organizations that has called the band, we condole our messages to the families of late Risotari, Biki Ruja and Sring Wangdi. दिल से दुख है, होना नहीं चाहिए था जो हुआ. And in the history of Arunachal, this has been for the first time it has happened, and it is one of the most aggressive civil war, we can say that. And as I have already said, in a democracy country, when any bill that the government makes is against the will of the people, such incidents will always occur because we are living in a democratic country. So likewise, the main purpose of today's conference is to make clarifications regarding our proposed band call. The 48 hours proposed band call was to scrapple the JHPC report that was to be tabled in the assembly session from 21 to 23rd. The proposed assembly session that was being made. So we were against that report only. उसी विषय में हमने 48 hours का बंद कॉल किया था. And unluckily, that turned out to be a riot. ऐसे क्यों हुआ, कैसे हुआ, I'll go in detail also later on. So on 25th of this very month, we 7 members had a peace talk with Honorable CM, and in that we placed some demands which has already been released in the paper also. And today also I would like to tell what were the demands that we proposed on 25th of this month when we met the Honorable Chief Minister. First demand was immediate solution of PRC issue, and the charter of demand that I have the copy here, that we had placed, government CM himself ने कैबिनेट मीटिंग बिताया तुरंत, एंड उसमें उसने क्या बोला, क्या एश्योरेंस दिया, दैट आई विल टेल. तो फर्स्ट हमारा पॉइंट था कि परमानेंट सॉल्यूशन टू PRC इशू. देन गवर्नमेंट assured in that cabinet meeting itself that they will scrapple this issue permanently for once and all. Number one point था. And second point हमने जो रखा वो था कि adequate compensation to the aggrieved families and to the injured people, to the protesters who were injured. And regarding diseased family, तो हमने गवर्नमेंट के सामने में प्लेस किया कि यू शुड compensate them with job security, minimum of B grade and an amount of ₹1 crore. तो उसके बाद में सुना है गवर्नमेंट CM साहब ने एक स्टेटमेंट भी दिया, शायद एक ये स्टेटमेंट दिया where he said that his government has assured to give 20 lakhs rupees and a job security
And again he said that after the statement comes in normalcy, he will meet the aggrieved family in person. तो वहाँ तक में उसका बात चला गया. एंड आफ्टर दैट जो इंजर्ड पर्सनस को कंपेंसेशन के लिए भी ही सेड 10 lakhs of rupees टू ईच इंजर्ड पर्सन. एंड उसके बाद में अगेन दे सेड कि ये जो इंजर्ड पर्सन है उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए दे हैव टू सबमिट द मेडिकल रिपोर्ट्स टू द डीसी ऑफिस. तो डीसी का थ्रू से चीफ सेक्रेटरी होके जाएगा एंड डायरेक्ट टू बेनिफिशरीज जो है उसका अकाउंट में ट्रांजैक्शन करने का बात हुआ. एंड फोर्थली हमने और एक डिमांड रखा है, दैट इज़ रीनेमिंग ऑफ टेनिस कोर्ट टू मार्टियर्स ग्राउंड. यहाँ पे आप लोगों को पता है आफ्टर द डिमाइस ऑफ मार्टियर मिस्टर रिशो तारी whose body has been laid down here. तो आफ्टर दैट हमने मांग किया कि दिस टेनिस कोर्ट should be renamed as Martyrs Ground. इसको Martyrs Ground डिक्लेयर करना चाहिए because they are the heroes of our society. They have not lost their life for cause of nothing. They have lost their life for the cause of the entire Arunachal Pradesh, especially the PRC issue के लिए. For the indigenous people of entire Arunachal, उसने अपना जीवन गंवाया है. And for his soul, उसका सेटिस्फेक्शन के लिए, उसका फैमिली का सेटिस्फेक्शन के लिए, फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द एंटायर सोसाइटी एंड अरुणाचल एज ए होल, इसको आप टेनिस कोर्ट को मार्टियर्स ग्राउंड डिक्लेयर करने के लिए हमने मांग रखा. एंड जितना धरना वगैरह कल को होगा वगैरह वगैरह यहाँ पे प्रपोज करने के लिए, इस हिसाब से इसको धरना स्थल को मार्टियर्स ग्राउंड डिक्लेयर करने के लिए हमने मांग रखा. एंड गवर्नमेंट से कि सीएम साहब ने ये बोला कि ये चीज़ जो है वो उसका अकेला का डिसीजन नहीं हो सकता है, बिकॉज फॉर दैट कैबिनेट अप्रूवल इज़ नेसेसरी. और उसने ये भी बोला कि यहाँ पे जो बीजेपी का पार्टी ऑफिस भी है तो उन लोगों का साथ भी कन्विंस करना है, बात करना है. उसके बाद में फैमिली जो जिस फैमिली मेम्बर्स है उसका क्या सोच है उसके साथ भी डिस्कस करने का बाद में. एंड आफ्टर दैट कि रीनेम करना नहीं करना उसको उसमें डिस्कस करेगा, उसके बाद में उसमें बताएगा. तो ये चीज़ उन लोगों ने बोला. तो उसने बोला कि दिस कैन नॉट बी डन विद इन ए मिनट, विद इन एन आवर, विद इन ए डे. इसके लिए थोड़ा एक प्रोसीजर ज़रूरी है. उसने एक ये दिया कि उसके बाद में एक एश्योरेंस दिया, चलो जो भी है बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे विल ट्राई. एंड 5th पॉइंट और 6th पॉइंट में हमने बोला कि इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल द एक्टिविस्ट दैट हैज़ बीन डिटेन्ड इन द कोर्ट, इन द पुलिस स्टेशन, एंड रिवोकेशन ऑफ एनी चार्जेस फाइल्ड अगेंस्ट एनी प्रोटेस्टर्स और द ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स. तो उसका अभी तक हमको जहाँ तक मुझे पता है, आई थिंक ऑल द activists, those who have been detained, they have been released, but the charges has not yet been lifted. ये जहाँ तक मुझे पता है अभी तक चार्जेस लिफ्ट नहीं किया गया है. एंड इसी वजह से हम लोग भी वी आर ऑल्सो नॉट एबल टू रोम फ्रीली. तो ये एक 7th पॉइंट था. उसके बाद में 7वां पॉइंट में हमने रखा है इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ एसपी कैपिटल हर्षवर्धन एंड एसआई सुशांत झा, पुलिस नाहरलगुन पुलिस स्टेशन का एसआई है, उन दोनों को इमीडिएट टर्मिनेशन होना है. रीजन इज वेरी सिंपल. यू सी, ऑन 22nd one of our brother let Risho Tari lost his life. Why and how? This question I asked to the magistrate and the police personnel. आप लोग का कमियां का वजह से ये चीज़ हुआ. फायरिंग हुआ किसने किया? Why did you fire? Till then तो आर्मी नहीं आया था, पैरामिलिट्रीज वेर नॉट देयर. पुलिस पर्सनल यू आर रिस्पॉन्सिबल. उसमें आपने फायरिंग क्यों किया, ये इंसिडेंट हुआ क्यों है? और उससे पहले देखिए और भी एक प्रॉब्लम क्या है. हमारा वन कॉलर्स का जो 2 ऑर्गेनाइजेशन का लीडर को अरेस्ट किया, दैट इज अपात्सु प्रेसिडेंट मिस्टर नाबाम तादो, आत्सु प्रेसिडेंट तागिन स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट मिस्टर राजू गिंग मालिंग को अरेस्ट किया फ्रॉम होलोंगी. अरेस्ट किया सुशांत झा ने. योर जुरिस्डिक्शन इज देयर एट नाहरलगुन. होलोंगी कम्स अंडर ईटानगर.
हाउ कम यू क्रॉस योर जुरिस्डिक्शन? आप क्या दबंग हीरो सोचते हैं क्या अपने आप को? अगर किया तो इन प्रिवेंटिव मेजर्स में आप किसी को डिटेन करता तो अलग बात है। यू अरेस्टेड देम, ब्रूचुअली यू टॉर्चर देम, यू गेव देम 3rd डिग्री, कहाँ कहाँ थाना में रखा, आप असम में ले गया, पीटीसी में ले गया, नाहरलगन में ले गया, ईटानगर फिर लेके आते हैं, हर जगह में हर स्टेशन में आप धुलाई करता है, इनह्यूमन एक्ट बिहेव करता है उन लोगों के साथ में। Bankol withdrawal post in different social medias and WhatsApp group has been done by SP Capital Complex and Harshvardhan sir and Sub Inspector Sushant Jha। ये इंसिडेंट ये कैसा करके हुआ थोड़ा हम उसको डिटेल्स में बता देगा। होलोंगी में 3 किलोमीटर्स फ्रॉम हाईवे से 3 किलोमीटर्स अंदर में मेरा फ्रेंड का एक फार्म हाउस था, तो उसमें हम लोग बैठा हुआ था। तो अराउंड 9:45 को सब इंस्पेक्टर जा उसका टीम का साथ आया, आयरबिन लड़का का साथ 9:45 अराउंड को 21 फरवरी को नाइट को आया। उसके बाद हम लोगों को उसमें गन पॉइंट में ये कॉक करके इनकाउंटर करने का धमकी दिया। मेरा लड़का लोग को मारा, उसमें हमको भी मारा। मारने के बाद तब हम लोग ने प्रोटेस्ट किया है, वी आर नॉट क्रिमिनल्स, हम लोग टेररिस्ट नहीं है, वी आर जस्ट सिंपल स्टूडेंट लीडर है और हम लोग का राइट है हम लोग बनकोल प्रोटेस्ट करने का। आप हम लोग को ऐसा थ्रेट नहीं कर सकता। फिर जितना जवाब देते इतना मारने शुरू किया। फिर हम लोग को गाड़ी अपना ले गया उधर से होलोंगी थाना में ले गया। उधर फिर बाथरूम में बंद करके मारा हम दोनों को, 800 पेशेंट हम दोनों को ये बोल कर मारा कि पुलिस को कोऑपरेट नहीं करने से क्या क्या होता है बोलकर। उसके बाद उधर भी हम लोग को टॉर्चर किया। फिर एक भाई अलसू का एक छोटा लड़का था, उसको भी इतना ख़राब से धुलाई दिया उसको भी। उसके बाद फिर हम लोग को बोला कि असम का जेल में रखेगा बिस्वानाथ डिस्ट्रिक्ट में। तो हम लोग को उधर से ले गया, होलोंगी से ले गया, लेकिन उधर असम का जेल में नहीं रखा। फिर हम लोग को पीटीसी में ले गया, गेट नंबर 1 में, ये ट्रेनिंग सेंटर जहाँ पे, उसमें ले गया। उसका हम लोग का मोबाइल तो जब अरेस्ट किया था तब हम लोग से सीज कर लिया था। उसका बाद बनकोल विड्रोवल का पोस्ट टाइप करने शुरू किया। SP कैपिटल कॉम्प्लेक्स एन झा अपना से पोस्ट कर रहा है पूरा ग्रुप में। उसका बाद हमको फोर्सफुली कॉल भी करने दिया, हम लोग का ग्रुप लीडर्स को लाउड स्पीकर में लगा कर कॉल करने दिया, बनकोल को विड्रॉ कराओ बोलकर ऑर्डर देने दिया वो लोग का सामने में। उसके बाद में इवन फोर्स मी टू ब्रिंग माई यूनियन नोट पैड फ्रॉम माई होम। मेरा हम भाई को कॉल किया रात का 2 बजे को, उधर से यूनियन पैड को लेकर न्यू दिल्ली थाना में रखने दिया। फिर हम लोग को उधर से ले गया। उसमें हम लोग को वो पीटीसी में SP जब होलोंगी थाना में आया था, उसमें भी हमको बोला है कि क्या प्रेसिडेंट तुमको हम पर्सनली देखेगा तुम जेल से कैसा निकलते। उसमें भी हमको चार्ज किया उसमें। उसका पीटीसी बंदरदुआ में भी ये बोला, कल अगर ये बोलेगा कि पुलिस ने फोर्सफुली तुम लोग को विड्रोवल करने दिया है बोलने से तुमको गायब करा देगा। हाउ एक पुलिस ऑफिसर कैन गिव सच काइंड ऑफ ये थ्रेटनिंग हम लोग को SP कैसा करके ऐसा बोल सकता है हम लोग को। तो उसका बाद में नाहरलगुन PS में लेके आया। हम लोग को यूनियन पैड में टाइप किया उसने, जाने उसका इंस्ट्रक्शन में टाइप करके प्रिंट आउट किया। SDPO सर भी था उसमें, तो हम लोग को उधर फिर साइन करने दिया, फिर फ़ोटो खींच कर अपलोड करने दिया। उसमें भी सेटिस्फाई नहीं होगा। फिर हम लोग को ये अरुणाचल होटल में ले गया, 309 में रखा सुबह का। हाँ 209 में हम लोग को रखा। उसमें अंदर बाहर में पूरा पुलिस बैठा। सुबह का कितना 5 बज गया था, सुबह का 5 AM था। तो उसका बाद में सुबह देखा है तो हम जब बहुत पानी प्यास लग गया था, हम नीचे उतरा तो रिसेप्शन में देखा है तो ग्रिल को खोलो बोला है ना, तो होटल का ग्रिल को नहीं खोल रहा था। तब देखा तो हम मनोज सिंह जी और ये क्या को इंदू चुकू को हम देखा उसमें, और एक मीडिया पर्सन था। तब हमको लगा कि ये लोग तो यहाँ भी मानने वाला नहीं है, हम लोग को मीडिया में उतार के ही छोड़ेगा, मैंने ऑफिशियली क्या कर ले। तो उसका बाद हम लोग ने फिर 7 बजे से लेके 9 तक हम लोग ये मीडिया में नहीं निकलेगा उनका हम लोग रुका। फिर हम लोग को CRPF ऊपर में लेने आ गया रूम में। फिर उधर से हम लोग को नीचे लेके आया। उसका बाद ऑप्शन नहीं था, हम लोग को ये ब्रीफिंग करके रख दिया कि क्या बोलना है नहीं बोलना। हमने उसमें क्लियरली बोला था SDO सर को। कल मीडिया वाला हमको पूछेगा अभी इंटरव्यू में कि आप लोग विड्रॉ कर, बाकी ऑर्गेनाइजेशन क्यों विड्रॉ नहीं कर, क्या जवाब देगा हम? तो बोलता है कि नॉट रीचेबल हो, ये लोग कॉन्टैक्ट में नहीं है, बोल दो बोल कर। उसके बाद में गवर्नमेंट का तरफ से क्या एश्योरेंस मिला PRC इशू में, मेरा पास जवाब नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का तरफ से कोई नहीं आया था हम लोग को बात करने के लिए। तो बोलता है वो जो तुमको ठीक लगेगा वो लोग तुम लोग बोल दो, सिर्फ बनकोल
ये ऑफिशियली विद्रो हो गया उनका, लगना है उनका, तो वी हैव नो ऑप्शन। फिर हम लोग को उधर से करके फिर स्टेटमेंट देने का बाद में उसमें भी मीडिया वाला से भी हम उससे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था कि हम लोगों को तो अंडर कस्टडी में जानते हुए भी इंटरव्यू लिया, पुलिस को एक क्वेश्चन भी क्यों नहीं किया, कब अरेस्ट किया, उसका तो हम लोग का फैमिली मेम्बर्स को भी इन्फॉर्म करने नहीं दिया। प्रोसीजर जो अरेस्ट का प्रोसीजर कम्प्लीटली लैप्स हुआ है इसमें। आप मालूम होगा डीएम का ऑर्डर को, जब ऑर्डर निकला है अरेस्ट के लिए, एक मजिस्ट्रेट प्रेजेंट होना है अरेस्ट का समय। अगर प्रेजेंट नहीं भी हुआ तो थाना में लाने का बाद में मजिस्ट्रेट में हम लोग को प्रोड्यूस करना चाहिए, और फैमिली मेम्बर्स को भी एटलीस्ट अरेस्ट ये इसको इंटीमेशन करना चाहिए कि अरेस्ट हुआ, कौन सा थाना में है। उसके बाद इवन रिलीज़ का समय में भी हम लोग को एक विटनेस होना चाहिए था फैमिली का कि रिलीज़ किया, या तो हम लोग को घर में पहुंचा देना है। ऐसा कोई प्रोसीजर मेंटेन नहीं हुआ है। मैंने जो फिल्म में देखता है वही गुंडागिरी एक पुलिस जो करता है इस ढंग से, क्या ये हम लोग स्टेट पुलिस से ये शोभा देता है कि ये करने ऐसा काम करता है कि कोई। वी आर नॉट क्रिमिनल्स, हम लोग अपना जस्टिस के लिए फाइट कर रहा है, अपना राइट्स के लिए फाइट कर रहा था, स्टेट के लिए, इंडिजिनस पीपल के लिए। उसका बाद हम लोग को फिर एसपी ऑफिस कैपिटल कॉम्प्लेक्स में ले गया, ले जाने का बाद में फिर उधर ईटानगर पीएस में लेके गया, डीआईजी साहब भी था, एसपी सर था। उसमें फिर हमको फोर्स किया, इसको फोर्स किया कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन लीडर को बुला के सरेंडर कराओ, नहीं तो तुम लोग ऊपर में इतना ज़्यादा चार्जेस लगाएगा और तुम लोग ये नहीं निकल पाएगा कभी जेल से। वो उसका तुम लोग का लड़का जो अंदर में उसका ऊपर भी वो लोग क्या करेगा, नहीं छोड़ेगा। ये अरुणाचल प्रदेश वो जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जो प्रिवेंशन एक्ट है उसको लागू करेगा। ये कोई धमकी देने का तरीका होता है क्या? हम लोग तो ये मान कर जब बन कॉल किया था, हम लोग तो ये मान कर किया है कि हम लोग अरेस्ट होगा ड्यूरिंग द बन कॉल या आफ्टर द बन कॉल, हम लोग जेल बैठने रेडी था। लेकिन ये पता नहीं था कि पुलिस हम लोग का साथ इतना ढंग से, मतलब अंदर प्रेशर शायद गवर्नमेंट से था होगा कि पीआरसी इशू को लेके हम लोग को जबरदस्ती करके फोर्सफुली विड्रॉ कराएगा। शायद वो लोग फॉल्स एजम्पशन में था होगा कि अपात्सु प्रेसिडेंट को अरेस्ट करा कर विड्रॉवल करा देगा, अपात्सु को बाकी ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मलाइज हो जाएगा, बन कॉल ऑफ हो जाएगा। ये एजम्पशन में क्या होगा, क्योंकि आई हैव हर्ड द कॉन्वर्सेशन ऑल्सो ऑफ एसपी किस से बात किया। इवन आवर प्रेसिडेंट ये अपसु प्रेसिडेंट भी ये बोल रहा था कि अपात्सु लोग विड्रॉ कर दिया तो रिलीज कर दो। हाउ ये चीज़ को एसडीओपीओ नाहरलगुन और जहाँ भी हम लोग को इंस्पेक्टर ये सुबह सुबह ये नाहरलगुन पीएस में पूछ रहा था, अपसु आप लोग का साथ में नहीं क्या? ऑल पीपल अरुणाचल के इंटर पब्लिक मालूम है कि अपात्सु ही ओनली ऑर्गेनाइजेशन था जो परमानेंट मेंबर था जॉइंट हाई पावर कमेटी का, जो जेएसपीसी में जो चल रहा था लीकेज करने वाला, अंदर में क्या चल रहा है। उसके बाद हम लोग ये फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये अपसु को यहाँ सस्पेंड किया, पाहुमपारा डिस्ट्रिक्ट में बॉयकॉट किया, रेजिग्नेशन डिमांड किया प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी को। तो व्हाट वाज द इंटरेस्ट ऑफ द अपसु ऑल्सो, तो हम लोग को रिलीज, हम लोग ने ना गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया, ना अपसु को रिक्वेस्ट किया, ना पुलिस को रिक्वेस्ट किया कि हम लोग को छोड़ दो। ऐसा हम लोग कुछ भी रिक्वेस्ट नहीं। वो लोग इतना जल्दबाजी में था कि जैसा भी करके विड्रॉवल कराना है, उसको ऑफ कराना है, उसके बाद में दे डोंट केयर। हम लोग का इमेज के बारे में सोचा भी नहीं, हम लोग का रेपुटेशन का क्या होगा इमेज के ऊपर। और हमने बार बार बताया कि ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ने जितना मिल के ऑर्गेनाइज किया ये बन कॉल को, एक सिंगल प्रेसिडेंट एक स्टेटमेंट देने से को बन कॉल विड्रॉवल नहीं होता है। आई हैव टू टेक डिसीजन फ्रॉम द इंटायर मेंबर्स ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। उसको भी सुनता नहीं, बोलता है कि तुम लोग बन कॉल कर सकते हैं तो विड्रॉ क्यों नहीं कर सकता है, अपना लड़का को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते। इतना दिमाग चाहता है ये लोग, पुलिस लोग। ये तो पुलिस का नाम है, धब्बा है। स्टेट पुलिस ऐसा काम करता है क्या? एक आईपीएस ऑफिसर है, वो जानना है रूल कानून का, अपना पुलिस का जो एक ड्यूटी होता है अपना रूल कानून को जानना है, कितना हद तक वो लोग कर सकता है। दिस इज़ नॉट द वे ऑफ आवर स्टेट पुलिस। रिलीज़ को हम लोग को उधर से 21 का रात को 9:45 अराउंड को हम लोग को अरेस्ट करके ले गया। उसका बाद में ये जो रिलीज़ नेक्स्ट डे का अराउंड आई थिंक 1 to 2 PM होगा, 22 का ईटानगर पीएस से रिलीज़ नहीं किया। हम लोग को बोला कि बाकी ये नेसा और ये आलसू को लेके आओ, यहाँ में सरेंडर कराओ, तब बाकी लड़का को भी छोड़ेगा उनका। तो हम लोग ने झूठ मारा है पुलिस को, थोड़ा एक्सक्यूज़ बनाया कि हाँ हम लोग उसको बात करेगा उनका, थोड़ा टाइम दो उनका। हम लोग निकल गया उसका बाद हम लोग वापस ने अपना फ़ोन को क्या कर दिया, ये था उसमें। तो इसमें ऐसा है, इसके लिए गवर्नमेंट से हम लोग ये डिमांड था कि उस दिन तो हम प्रेजेंट नहीं था पीस टॉक में, लेकिन हम लोग का रिप्रेजेंट पाहुमपारे से भी गया था, देव्याम्बुज गया था। तो इसके लिए हम लोग का डिमांड था कि एसपी हर्षवर्धन एंड सब इंस्पेक्टर ये सुशांत झा का ऊपर ये दोनों को सस्पेंड, एक को सस्पेंड करना, एक को टर्मिनेट करना। अगर टर्मिनेट नहीं भी करता है ये सुशांत झा को, सस्पेंड करा कर वो लोग को ऊपर इंक्वायरी बैठाना चाहिए, सो डैट हम लोग अपना जो एलिगेशन है
अपना जो प्रूफ है, एविडेंस है, हम लोग जो इंक्वायरी कमेटी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया उसको सबमिशन कर सकने के लिए। नाउ दे आर रोमिंग फ्री हैंड घूम रहा है, एविडेंस को टेम्परिंग कर सकता है वो लोग, कुछ भी कर सकता है, हम लोग को री अरेस्ट कर सकता है। तो ये सिचुएशन में ऐसा हम लोग को रखा है। यहाँ तो पीस तो का डिमांड तो फुलफिल ही नहीं हो रहा है मेरा हिसाब से, मेरा सोच के हिसाब से। तो गवर्नमेंट एक अभी ये कमीशन एक अपॉइंट किया बोला, तो उसका मेंबर्स भी कौन है, किसको सबमिशन करना है, वी डोंट नो, अभी तक रिवील नहीं किया। तो ये ऐसा टाइप का ये कैसा पीस तो क्या, हाउ कैन, जब तक हम लोग अभी भी फियर एंड डाउट में कभी भी हम लोग को ऊपर अरेस्ट कर सकता है, अंदर डाल सकता है। तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग कैसा निकल के वी विल प्ले द रोल, कैसा प्ले करेगा पीस के लिए, पीस मेंटेन के लिए, हम लोग तो फ्री होना पड़ेगा ना। तो इसके लिए गवर्नमेंट से स्पेशली हम लोग डिमांड है कि आप सबसे पहले ये दोनों को सस्पेंड कीजिए, इंक्वायरी बैठाइए, और हम लोग को भी मौका दीजिए, कमीशन को फ्रीली हम लोग जो हम लोग के पास अभी फुल्ली एविडेंस है, प्रूफ है, विटनेसेस है सबमिशन करने के लिए दोनों का ऊपर में। उसके बाद आई ऑल्सो अपील ऑल द विक्टिम्स, जो लड़की का ऊपर में जो ये मैन हैंडलिंग किया, मिसबिहेव किया, मीडिया का ऊपर किया, जितना भी प्रोटेस्टर का ऊपर में किया, आप लोग भी इंडिविजुअल लेवल में FIR लॉन्च कीजिए। आप लोगों के पास जो भी प्रूफ है, फोटोज़ है, आप करना चाहिए। अब देखिए ये अरुणाचल प्रदेश कैपिटल कॉम्प्लेक्स इज नॉट मणिपुर या कश्मीर या नागालैंड नहीं है कि पुलिस वाला रातों रात उठा के ले जाएगा, किसी को भी इन्फॉर्म नहीं करेगा, इनकाउंटर कर देने से, मार देने से बाद में बोलेगा कि हम लोग ने अरेस्ट नहीं किया। ये क्या अरुणाचल में लागू करने जा रहा है क्या? इस दिस स्टाइल ऑफ वर्किंग, पुलिस का स्टाइल है क्या वर्किंग करने का स्टाइल? ये कोई ढंग नहीं है ना करने का। आज तक कितना बनकॉल हुआ है, बनकॉल नॉर्मली जाता है, रास्ता में तोड़ फोड़ होता है, गाड़ी जाता है, लेकिन आज इस बार जो हुआ कि ये शायद किसी ने, कोई अपोजिशन पार्टी से हो सकता है या कोई गवर्नमेंट से खुश नहीं वाला पार्टी लोग हो सकता है, जो इंजेक्ट किया, इंस्टिगेट किया वो, लेकिन वो हम लोग का परव्यू, वन कॉल परव्यू में नहीं आता है। हम लोग का 21 से लेकर 23 का सुबह 5 AM में ख़त्म हो जाता था वन कॉल। और अब अभी आप देखिए, आज होम मिनिस्टर डिनाई कर रहा है फायरिंग ऑर्डर नहीं दिया, तो किसने दिया? चीफ सेक्रेटरी ने दिया, ना होम सेक्रेटरी ने दिया, ना CM ने दिया, किसने दिया? ये तो गवर्नमेंट हैव टू टेल द पीपल, आदमी को बताना पड़ेगा पब्लिक को कि किसका फायरिंग ऑर्डर में मारा है, ना SP का ऑर्डर में मारा है। तो इसको तो क्लियरिफाई गवर्नमेंट कर देना है। हम लोग को ऊपर शिफ्ट क्यों कर रहा है बर्डन को, एलिगेशन को? वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल। आपका पास इतना वेरियस मेथड था, आप ये सप्रेस करने के लिए, प्रोटेस्टर को सप्रेस करने वेरियस मेथड था गवर्नमेंट का पास में, पुलिस का पास में, एडमिनिस्ट्रेशन का पास में। और आप देखिए DC प्रिंस दाबन भी कैपिटल कॉम्प्लेक्स का, वो अगर हम लोग को 20 में ऑर्डर निकाल सकता है, हम लोग को ये अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्ट में डिटेंशन के लिए ऑर्डर निकाल सकता था। एट द सेम टाइम DC का अंदर में मीटिंग भी हुआ, सुना बिजनेस ये कम्युनिटीज़ का साथ में दुकान खोलना है, फाइन लगेगा, डबल स्टिक खोला गया दुकान को। तो उसने एक सेम डे में 20 का एक कोशिश, एक ये प्रिकॉशन में ये ऑर्डर में निकाल सकता था कि अगर हम दो ये इलीगल डिक्लेयर करता है बन कॉल को, फिर भी जो जितना जैसे IG पार्क में प्रोग्राम चल रहा था, वो लोग को एक तो वार्निंग तो दे सकता था कि अपना खुद को सामान को प्रोटेक्ट करके रखो, बन कॉल में कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं किया। एजुरेंस किसने दिया? डिप्टी कमिश्नर प्रिंस दामन ने दिया, कैपिटल कॉम्प्लेक्स ने। तो आज वाई ही इज़ नॉट टेकिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी? गवर्नमेंट भी क्यों पेमेंट करेगा? जितना डैमेजेस हुआ है उसका ऑर्डर तो वो इसने एजुरेंस दिया ना कि कुछ भी नहीं होगा बोलकर, कैसा वो ग्रांटेड ले लिया? वाई ही इज़ नॉट टेकिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी टुडे? वाई इज़ ही हायरिंग टुडे? क्यों चुप कर बैठ रहा है वो? उसका बाद में जो हम लोग भी अभी 48 आवर्स का जो हम लोग का डिमांड था, तो उसमें नंबर 1 PRC इशू को परमानेंटली गवर्नमेंट ने स्क्रैप डाउन कर दिया। वी आर वेरी हैप्पी विद दैट कि स्टेट का जितना भी वो हम लोग का डिमांड था, जो फाइट था, वो सक्सेस हुआ। लेकिन पब्लिक को भी ये जानना जरूरी है कि PRC इशू ख़त्म नहीं हुआ। अब गवर्नमेंट लेवल में इसको आप ख़त्म कर दिया होगा, दोबारा प्लेस नहीं करेगा बोला, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ ये PRC। इसको भी जानना जरूरी है पब्लिक को। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने लिबर्टी दिया नॉन FST कम्युनिटी ने, जिसने फाइलिंग किया कोर्ट में, कि अगर इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द JSPC रिपोर्ट, उसको फ्रीडम दिया कि आप कोर्ट में वापस आ सकता है। नाउ यू सी, आई एम फ्रॉम द डे 1 हम ये चीज़ को बता रहे हैं इन सोशल मीडिया ऑल्सो, प्रीवियस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन किया कोर्ट में कि PRC नहीं दे सकता है इन कंट्रावेंशन ऑफ बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 का। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर पहले भी दिया या आगे भी देगा, वो कैंसिलेशन होगा, नहीं दे सकता, उनको कम्प्लीटली उसको ऑब्जेक्शन किया। तो इट वाज द ड्यूटी ऑफ द JSPC कमेटी जो रिपोर्ट बनाया, ये जो गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूटेड वाला कमेटी है, ये अपना स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए था।
उल्टा सपोर्ट करने का जगह में उल्टा ये फेवर में रिपोर्ट बनाता है। एन यू से ये चीज़ को शुरू से अवॉइड कर सकता था। आज जितना भी इंसिडेंट हुआ, बन कॉल भी नहीं होना था। हम बता रहे पब्लिक को, बन कॉल भी नहीं होना था अगर अपसू सही समय में सही स्टैंड लेता। अपसू अपना रेजुलेशन फेडरल असेंबली का तेजू का अपना खुद वॉयलेशन किया, स्टैंड नहीं किया, हम लोगों को डीएसयू कम्युनिटी स्टैंड को लीड नहीं कराया। शुरू से अपसू बोलता है कि पीआरसी इशू को टेबल नहीं करना है बोलने से गवर्नमेंट भी शायद हिम्मत नहीं होना था असेंबली में टेबल करने के लिए। दूसरा चीज़ यहाँ पे सीएम सर भी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी अवॉइड कर सकता था। जब उसको पता था कि इसका जॉइंट हाई पावर कमेटी मेंबर्स ही ऑब्जेक्शन कर रहा है, इमीडिएट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट का नामसाई, लोहित, चांगलांग, पापुम पर है, उसका कम्युनिटी स्टूडेंट, डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट ऑब्जेक्शन कर रहा है, जो उसका मेंबर था जॉइंट हाई पावर कमेटी का। एटलीस्ट इतना बड़ा डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने असेंबली में टेबल करने के लिए, बुलाना चाहिए था जॉइंट हाई पावर कमेटी को मेंबर को कि गवर्नमेंट ये प्लेस करने जा रहा है असेंबली में, तो कल ये कंट्रोवर्सी उनसे गवर्नमेंट के ऊपर बदनाम हो सकता है। आप लोग सब एग्री है क्या नहीं, येस और नो, पूछना चाहिए था, ये नहीं पूछा। उसका बाद कैबिनेट डिसीजन को भी पास किया असेंबली में टेबल करने के लिए पीआरसी को इशू को, उसको भी पब्लिक को, मीडिया को नहीं बताया असेंबली में क्या होने जा रहा है, क्या चीज़ के ऊपर डिस्कशन होने जा रहा है। ये तो हम लोग का राइट है ना पब्लिक का, असेंबली में क्या डिस्कस होने जा रहा है तो पब्लिक जानना चाहिए इसको, गवर्नमेंट क्या बिल टेबल करने, क्या डिस्कशन करने जा रहा है। हाइड एंड सीक जो पॉलिसी खेला वो एक सबको डाउट, हम लोग को भी डाउट क्रिएट किया कि, और आप लोग ने खुद देखा है कि तारो चट्टों का इंटरव्यू में देखा है कि हर एमएलए क्या था, सब पॉजिटिव था, देना है बोलकर। तो आज गवर्नमेंट उसको डिनाई क्यों करता है कि हम लोग सिर्फ डिस्कशन करने वाला था, हम लोग उसको टेबल मतलब पास करने वाला नहीं था। वाई दे आर डिनाइंग, उल्लू क्यों बना रहे हैं हम लोग को। और अपसू का भी अपना स्टैंड क्लियर था बोलने से वाई हम लोग को लीड क्यों नहीं करा, अपना रेजुलेशन वॉयलेशन क्यों नहीं कराया। शायद गवर्नमेंट को एश्योरेंस मिला होगा कि एपेक्स बॉडी इज साइलेंट, कुछ भी नहीं होगा, अंडरमाइन किया होगा। ये इशू जो ऑर्गेनाइजेशन से वन कॉल सक्सेसफुल होगा बोलकर या होगा नहीं होगा, ये नहीं था। ये था कि पब्लिक का सेंटीमेंट जुड़ा हुआ था ये पीआरसी इशू में। उसको गवर्नमेंट का ड्यूटी था अच्छा से पब्लिक को समझाना था टेबल करने से पहले कि ये है वो है बोलकर। और हम लोग ने पारावाइस में भी रिप्लाई बनाकर हम लोग सबमिशन किया। और ये जो इतना फास्ट हुआ, 9 तारीख को फाइनल मीटिंग खत्म हुआ जेएसपीसी का, उसके बाद कंटिन्यूस मतलब ये टाइम ही नहीं दिया, ये जॉइंट ये कैबिनेट डिसीजन हो गया, उसका असेंबली में टेबल कर दिया। हम लोग को आज आदमी लोग बोलता है कि आप लोग 48 आवर्स वन कॉल क्यों किया, हम लोग को भी कहाँ टाइम मिला। एक ऑर्गेनाइजेशन इतना स्टेट के इशू को फाइट नहीं कर सकते, इसके लिए आई हैव इन्वाइटेड सर्कुलर दिया कि सब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करो। टुडे आई एम वेरी अनहैप्पी, हम बहुत शर्म लगता है बोलने के लिए। माई डीएसयू फ्रेंड्स, डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, इंटायर 22 डिस्ट्रिक्ट का जो डीएसयू लोग है, कम्युनिटी स्टूडेंट यूनियन है, दे वर प्रेजेंट इन द अपसू फेडरल सेशन एंड अपसू हैज़ वायलेटेड दिस रेजुलेशन एंड दे वेर साइलेंट, चुपचाप देख रहा था। जब हम लोग ने मीटिंग बुलाया पीआरसी इशू में, एपेक्स बॉडी साइलेंट होने से हम लोग उसको आवाज़ करेगा बोलकर, नो वन केम, ओनली आवर लोअर सुनसरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन पार्टिसिपेट किया, हमारा तागिन स्टूडेंट यूनियन पार्टिसिपेट किया। ये होता है क्या चीज़, जो आप लोग सही समय में उतर जाता तो आज कहानी अलग भी होता। अब बन कॉल हो गया, इतना इंसिडेंट हो गया, उसका बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट में बन कॉल करके क्या प्रूफ करना चाहते हैं गवर्नमेंट को डिमांड करके। आपको जब खड़ा होना चाहिए था, आप खड़ा होना चाहिए था, इक्वली खड़ा होना चाहिए, जब हम लोग क्लियरली बता रहा था कि ये फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। सो जिस जो ये पीआरसी इशू गवर्नमेंट लेवल में ख़त्म हो गया, दोबारा तो शायद मेरा ख्याल से कोई कांग्रेस और बीजेपी ये इशू को दोबारा उठाने नहीं सकेगा। लेकिन क्या है कि लीगल ऑप्शन इन फेवर ऑफ द नॉन ओपिस्टी का ऊपर छोड़ कर रख दिया। इसके लिए गवर्नमेंट से हम ये डिमांड है कि आप जब चीज़ को ख़त्म कर ही रहे हैं ना, लीगली भी आप उसको अच्छा से ख़त्म कीजिए, फ्यूचर में उसको ऑप्शन मत छोड़ दीजिए। फिर इसके लिए आप नंबर 1 तो ये जेएसपीसी रिपोर्ट को आप कैंसिल करना है, जो सबमिशन किया था नाउम रेबिया वाला को कैंसिल करके उसको रिकॉन्स्टिट्यूट सकने से करना है, उसको रिपोर्ट बना कर सबमिशन करना है। दैट रिपोर्ट शुड गो टू द ऑनरेबल कोर्ट एंड इट शुड सपोर्ट द स्टेट गवर्नमेंट। जो एडवोकेट ने सबमिशन किया, ऑब्जेक्शन किया, इसको सपोर्ट करना चाहिए। वाई दिस हमेशा जब इलेक्शन आएगा पॉलिटिकल पार्टी लोग एडवांटेज लेने करता है, वाई नॉट इसको परमानेंटली ख़त्म कर दो, सो दैट नो पॉलिटिकल पार्टी इन फ्यूचर में उसको कभी एडवांटेज उठा सकने के लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। दिस इज़ आवर स्टैंड एंड आई एम टेलिंग एवरीवन, आप लोग को हम बोलता है कि हम लोग को पैसा लिया है बोलता है, बिक्री हुआ, बन कॉल विड्रॉ किया है बोलता है। ओके, आज हम आप लोग को पूछ रहे हैं, हम लोग का बन कॉल जब हम लोग डिक्लेयर किया, कोई एक अपोजिशन लीडर, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी एक लीडर हम लोग एक बोतल पानी तक भी नहीं दिया, किसी ने हम लोग को कॉल करके भी नहीं पूछा। हम लोग अपना ओन रिस्क में जेल जाएगा बोल के, हम लोग भी फैमिली वाला है, हम लोग अपना विलिंग से किया, लड़का लोग को हम लोग अपना साथ में लेकर हम लोग उतरा, कोई एक मदद करने वाला। आज भी अगर कोई प्रूफ करता है, एविडेंस लेके आता है, प्रूफ लेके, विटनेस लेके आता है कि हम लोग ने पैसा लिया है किसी से भी,
ये बन कॉल करने के लिए पीआरसी इशू को पोटिया दर्ज करने के लिए और विड्रॉल करने के लिए भी पैसा लिया, प्लीज़ कम फॉरवर्ड, आप आइए अपना प्रूफ का साथ में। आई एम रेडी टू रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंट, अपर्चुनिटी से हम रिजाइन करने रेडी है। परमानेंट स्टैंड पॉलिटिक्स को भी छोड़ देगा। एनी पनिशमेंट इफ यू वांट टू गिव अस, गिव इट।